Hello students, I am Naveela Tariq. Today we will discuss the second poem of your Honeydew Reader, and that is the geography lesson written by Zulfikar Ghosh. Over here the poet actually goes up around 10,000 feet above the ground, and then he watches the city, and what he finds that when you see a city from a height, from a greater height, you always find that the city is very neatly planned, very organized, everything is in equal proportion. But when you start coming down and when you get there in the city, you find that everything is like a haphazard, means everything is like disorderly organized, सब कुछ बहुत disorderly तरीके से organized है किसी भी सिटी में. और जब हम सिटी को बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड है, सब अपनी जगह पर इक्वल प्रोपोर्शन में फिक्स है, पेड़ अपनी जगह हैं, नदी रिवर सी अपनी जगह पर है, पहाड़ अपनी जगह पर है, घर अपनी जगह पर है. इट लुक्स लाइक अ मैप, इट लुक्स लाइक अ नीटली मेड मैप. बट जब हम सिटी में आते हैं, उसके अंदर रहते हैं, तब हमें उसकी वीकनेसेस दिखाई देती हैं. हमें लगता है जैसे सब कुछ बहुत ऊपर खाबड़ तरीके से सेटल्ड है, कोई भी चीज़ का सेटलमेंट अच्छा नहीं है. सो what you see thing from a height and what you actually realize when you go through it. So both the pictures are quite different for the poet. Okay, let's start reading. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Neatly planned and perfect in proportion, like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जब हम किसी भी सिटी को 10,000 फीट अबव द ग्राउंड से, मतलब 10,000 फीट ऊपर से देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नीटली प्लान्ड लगती है. एवरीथिंग लुक्स लाइक इट इज़ इन परफेक्ट प्रोपोर्शन. इट लुक्स लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन. मीन्स जब हम ज्योमेट्री में डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो हम लोग कंपास से, स्केल से, प्रोटेक्टर से बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन बनाते हैं, एंगल्स को मेजर करके. तो कोई भी सिटी जब ऊपर से देखो तो वो ऐसा लगता है जैसे वो एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की तरह है. लेकिन जब हम उसके थिक ऑफ इट मीन्स जब हम उस सिटी में आते हैं, तब हमें वो वैसी नहीं लगती. Here is the poet's description of such view of the city and some questions that come to his mind. जब वो सिटी को ऊपर से देखता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं. So what are those questions that we'll discuss in this poem? When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. Now this poet is moving in a jet plane, मतलब हेलीकॉप्टर से वो धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है. जेट sprang means it is now moving upwards in the sky. It was clear why the city had developed the way it had. तो जब वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रहा था तो उसको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा था कि सिटी अगर ऐसी बनी है तो ऐसी क्यों बनी है. Seeing it scaled it 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. जब वो थोड़ा ऊपर गया, around 6 inches to the mile, जब उसने ऊंचाई पकड़ी, तो उसको inevitability means unavoidingly, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे ग्राउंड में जब हम रहते हैं तो हमें सिटी बहुत ज़्यादा हैफेसर्ड लगती है. हैफेसर्ड मीन्स बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं. यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया है. हैफेसर्ड मीन्स विदाउट प्लान और ऑर्डर. हमें ऐसा लगता है कि हमारी सिटी बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है और बिल्कुल भी ऑर्डर तरीके से नहीं बनी और किसी भी स्टाइल से नहीं बनी. मतलब हमारी सिटी बिल्कुल डिसऑर्डरली है, कोई भी चीज़ अपनी जगह प्लान नहीं है, कोई चीज़ कहीं भी है, कोई भी घर कहीं बना है, कहीं से भी नदी निकल रही है, कहीं भी पेड़ लगे हैं, कहीं भी जंगल है. मीन्स एवरीथिंग इज़ इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर. नाउ सेकेंड पैराग्राफ. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly
delineated when the jet reached 10,000 feet. Now, जब जेट थोड़ी ऊंचाई पे पहुंचा था तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि सिटी इतनी अनप्लान्ड क्यों है, लेकिन जब जेट 10,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचा तब ये रियलाइज़ हुआ कि सिटीज़ जो शहर है वो उसी जगह पर सबसे ज़्यादा बने हुए हैं, मीन्स वो जगहें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं जहाँ से नदी बह रही है। और वैलीज़ पॉपुलेटेड क्यों हैं, मतलब वो जगहें जो पानी के पास हैं, जो जगहें पहाड़ों से नीचे उतरती हैं, वो जगहें ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों हैं। दैट मीन्स वाई आर वैलीज़ पॉपुलेटेड, वाई आर द एरियाज़ नियर द रिवर पॉपुलेटेड, वाई, बिकॉज देर इज़ अ लॉजिक ऑफ जोग्राफी। जोग्राफी के पीछे एक लॉजिक है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स मैन, अट्रैक्ट्स लाइफ। जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ होगी, जहाँ पे लैंड फर्टाइल होगा, जहाँ की ज़मीन में बहुत ज़्यादा पेड़ उग रहे होंगे, जहाँ पे जंगल उग रहा होगा, जहाँ पे खेती बाड़ी होगी, या जहाँ पे पानी होगा, नदियाँ होंगी, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ओके, वाई? बिकॉज वी गेट आवर लाइवलीहुड थ्रू लैंड एंड थ्रू वाटर. So the fertility of the soil and the flowing direction of the river actually attracts man and attracts life. That is the reason the places near rivers are more populated and the places that are the valley areas are more populated, because जो valley area होता है वो rich होता है अपने minerals में. Okay, the soil in the valley is rich in minerals, it is very fertile. That are the reasons why valleys are densely populated. Clearly delineated, delineated means clearly visible, clearly shown. मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाती है जब हम 10,000 फीट ऊपर जाते हैं कि जहाँ की ज़मीन उपजाऊ है, जहाँ पे रिवर है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, या वैलीज़ में पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth is round and that it had more sea than land. फिर जब हम जेट उसका और ऊंचा उड़ता है, 6 माइल्स और ऊपर जाता है जब उसका जेट, तो ये रियलाइज़ होता है कि अर्थ, मतलब जो अपनी अर्थ है वो पूरी राउंड है और यहाँ पे पानी ज़्यादा है और ज़मीन कम है. लेकिन जब हम अपने शहर में रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ज़मीन ज़्यादा है, पानी कम है, बिकॉज वी कैन नॉट सी रिवर एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी ओशन एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी द सीज़. So we think that we can only see land and everywhere land, मतलब हमें सिर्फ ज़मीन दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है ज़मीन ज़्यादा है. But when you start moving upwards very high, then time you realize that there is more sea than compared to land. But it is difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other. They built a wall across the cities and to kill. From that height, it was not clear why. Now, when the poet went above and above the ground, higher he went into the sky, उसको बहुत सारे उसके questions clear हो गए कि अगर population किसी एरिया में ज़्यादा है तो क्यों है, अगर पानी कहीं बह रहा है तो क्यों बह रहा है, ओके, जंगल है तो क्यों है, कहीं पर खेती ज़्यादा है तो क्यों है, ओके, या ज़मीन ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है. All these questions were absolutely clear when the poet reached high above the ground. लेकिन इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद भी उसको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी. He was not able to understand some things. और वो चीज़ें क्या थी? Why do men hate each other? लोग, इंसान आपस में एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं? उस हेट करने के पीछे का कॉज क्यों है? उन्होंने हर शहरों को बंद क्यों कर दिया है? हर जगह बाउंड्रीज़ बना ली हैं, एक दूसरे को मारते हैं, they kill each other. इतनी ऊंचाई पे जाके इन बॉन्डेजेस का, इन रिस्ट्रिक्शंस का, इस हेट्रेट का आंसर उसको नहीं मिला. दैट वाई आर पीपल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द थ्रेड ऑफ हेट्रेट? वाई डू दे हेट ईच अदर विदाउट एनी एपरेंट कॉज? वाई डू दे किल ईच अदर? एंड वाई आर दे confining themselves to their own spaces? मतलब जिसे कहते हैं दीवार उठाती है. अब एग्जैक्टली दीवार नहीं उठाई, दो शहरों के बीच में दीवार तो नहीं उठी होती है, लेकिन उनका मतलब है कि लोगों ने अपने दिल में दीवारें उठा दी हैं. दे डोंट वांट टू मिक्स अराउंड विद पीपल, दे आर ऑल हेटिंग ईच अदर, दे आर जेलस ऑफ ईच अदर, दे आर ग्रीडी एंड एक्सेट्रा.
So what are the reasons between these? Okay, this reason is not clear even if when the poet reached the height. So what is the moral that we get from this poem? हमको इस poem से क्या moral मिलता है कि नेचर ने अपने आप को एक बहुत इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करके रखा है, बहुत ही ऑर्गेनाइज करके रखा है. यहाँ पे लैंड और वाटर और मैन मतलब लाइफ, जो पॉपुलेशन है, इंसान है, ज़मीन है और पानी है, सब आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. देयर इज़ अ लव बिटवीन ऑल द थ्री कॉम्पोनेंट्स, दैट इज़ द लैंड, द वाटर एंड द मैन. देयर इज़ इमेंस लव. तभी जहाँ पे ज़्यादा अच्छी ज़मीन होती है वहाँ इंसान होता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ भी इंसान होता है. सो देयर इज़ लव among the aspects of nature, and nature has its own organization which is done in a very proper manner. लेकिन इंसान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप किया है. इंसान ने बिल्कुल अपने अंदर की अच्छाई ख़त्म कर ली है. एंड द पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग शुड लर्न अ लॉट फ्रॉम नेचर. मतलब ह्यूमन बीइंग को नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए. हाउ डू नेचर अट्रैक्ट इटसेल्फ? But human beings are hating each other. Instead of getting attracted, they are hating each other. So this is the moral of the poem. I hope this is clear to you. Thank you.